जी मैंने आप क्यों नहीं बिहार में यू शुड उधर ही ले जाइए। बिल्कुल बिहार में यू शुड डू डन इन ओडिशा। उड़ीसा में भी तो हम ही लोग बात कर रहे थे। बात हो गई थी तब तुमसे भी उनका आपसे इंट्रोड्यूस थोड़ा सा जाते लोग ये उनको दे देते हैं। तो आप तो काफी फ्रेश लगते हैं जन दरबार के बाद भी। क्या हम सोचे आप बहुत ही नहीं रोते हुए देख अभी तो ये कदा आ जाता इस शुरू में पिछले साल कि गुड प्रैक्टिसेस भी देखी जाए, कुछ कर सकते हैं जो आपका देखा, और रिहैबिलिटेशन ऑफ अक्यूट मैलन्यूट्रिशन के जो बच्चे हैं। तो पहले तो आप पहले इंट्रोडक्शन कर दूँ। 140 सेंटीज में पिछले हफ्ते हुआ है। रिजॉल्व है। आप भी उधर सदन रहते तो आप भी यहाँ पूछते क्या निकल करके आया है सर ये? ऑर्डर को लेकर होता है। मुझको खुशी है कि इस बार उसकी कोई चर्चा नहीं हो रही है, किसी भी मीटिंग में उसकी चर्चा नहीं होती, लेकिन वो एक ऐसी चीज है जो निरंतर सजगता की आवश्यकता महसूस करता है। और मैं आपको इतना ही आश्वस्त करूंगा कि इस फ्रंट पर
हमारी सरकार निरंतर सजग है, हमेशा हम सजग हैं। अब ये नहीं कि कहीं कोई बात आती है या नहीं आती, कोई इंसिडेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अपनी पूरी शुभकामना देता हूँ कि आपकी मीटिंग कामयाब हो और बिहार के लिए उपयोगी हो, फलदायी हो। बहुत बहुत धन्यवाद। I have the pleasure to invite दिलीप भैया तो ऐसा नहीं कीजिए अभी का ऊपर जा पहला बैठाते हैं नीचे आएंगे Honorable Chief Guest, Honorable Advocate General, the Principal Secretary, Department of Human Resources Development, भैया हाथ नीचे कर भैया हाँ नीचे कर दे कहाँ फंस रहा है Now, may I request our senior faculty, Mrs. Sagarika Mukherjee, to present the bouquet to the Honorable Chief. I also request वो जय है मेरा जय है इसी का Ma'am 72 कर दो जो हमको मोबाइल किया ना 72 करो to the President of this जय वही occasion, है our Chancellor, Honorable Chief Justice Patna High Court. अमृत जय किशन I request Ms. Amrita, and now I request our faculty, Ms. Shilpi, to give away the bouquet. Thank you. Now, I request our Vice Chancellor, distinguished guests, Rogers came a very good beginning in imparting justice education. Well began is art. And the new nomenclature given to the education is justice education because Dharma is the foundation of everything. Sarve Sarvam Pratishtham. And taking this and all Orients we emphasize on Dharma. And with Dharma we that Dharma eva adho kantihi Dharmo rakshati. And this being the main thing, Vijnanam cha paritham moksha. Every individual, they all is being, in fact means knowledge is the supreme power. And for others to realize this, it took 2300 years when Alvin Toffler in 1990. And so now it's my pleasant duty to welcome the distinguished guest for this gathering today. This land of ancient wisdom, Nalanda. There is no interruption as far as dawn of Vidya is concerned. That is how we see this land of glory has taken several major steps to transform and to bring us a metamorphosis in Bihar by taking up several projects. One such important project is the Starkins, as far as I am concerned. He is at once Kubera and also Karna. Whenever I approach him for financial aid, he always says, funds, no problem, you go ahead, and for whatever I want. So he has enough money, that is his commitment. I welcome him because he has also issued me 1 crore rupees to the Bar Council Fund for establishing a chair.
I welcome our donors. I think she has not come, but Justice Mudira. सबके पीछे नहीं रहे जगह तो एक बार बैक में जाओ कितना बस आप लोग कैमरा नहीं ऊपर कीजिए History of Vijayabad Bihar. History. Technology, architecture, and layout of the building based on modern architecture. पेंटिंग में भी यार Cherish together and realize together. It is a dream coming true. Now, thank you. I request all the thank you, sir. बिहारी आदमी का फोटो डाल देते हैं बाहर का आदमी का फोटो डाल देते हैं आप जरा दीजिएगा जगह हाँ कहना Now, may I request the Honorable Advocate General, the guest of honor, to kindly address the August gathering. Thank you. Principal Secretary of Human Resource Development Department, Shri Ajay Kumar Singh, Honorable Judges of Patna High Court, former Judges of Patna High Court, to witness foundation laying ceremony of Chanakya National Law University. In fact, for us, we could acclaim as an institution of excellence. Despite efforts from various quarters, including Bar Council of the State and Bar Council of India, nothing concrete. His Excellency Governor of Bihar, Honorable Chief Minister, and the then Honorable Chief Justice Dr. J.N. Bhatt. Of the new acquisition, which we are shortly going to have, as the projections are that the building shall be completed within 18 months from today. I was just told, and when I was reading the information, I found that 18 acres of land has been given for Chanakya National Law University. Of course, all those who have yearned for this institution are grateful and thankful to the state government. But for the information of Honorable Chief Minister, I can just tell him that in Hyderabad, the National Law University has been given 50 acres of land. While I was in Bombay, only a couple of years back, we had actually settled for 25 acres of land. And you can simply understand what a piece of land in Bombay means. I think Bihar does not have that scarcity of land, and maybe for a long run to have a university of high standards that we are contemplating, a land of 18 acres may be really short. I can tell you, there is not a single subject under the sun which you don't come across while studying this course. Of course, Chanakya Law University is too infant and the second year is completed now, but surely the subjects which are being taught and will be completed in 5 years
shall be the subjects which will empower its students to acquire. Where I was actually a member of the governing council, the pattern has shown that the students coming out of these schools and institutions and universities, they only going for corporate job. Now, when the idea of this National Law University was floated, this was not surely the purpose that we channelize our talent in law to corporate sector alone. That was not the idea. That is not the idea. In a state which is facing lots many problems, well, this is not an occasion where I would lecture or speak much. I wish Dr. Lakshminath a grand success in establishing this university. As a Chancellor, my guidance is always available, and surely our endeavor will be that once this institution comes into existence, which of course it has, but what I'm telling is new building, new infrastructure, that we will have, surely the product will be as beautiful, as good, as talented as the building may come out to be. So wishing you all the best. पूर्व न्यायाधीश चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर ए लक्ष्मीनाथ जी, विद्वान महाधिवक्ता श्री पी.के. शाही जी, यहाँ उपस्थित सभी विद्वान अधिवक्तागण, बिहार सरकार के मानव संसाधन विकास विभाग के प्रधान सचिव, विधि विश्वविद्यालय के भवन का शिलान्यास हो रहा है और इस अवसर पर हम सभी उपस्थित हुए। बिहार में विधि विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही है, ये बहुत ही प्रसन्नता की बात है। एक जमाना था जबकि इसी धरती से यही नालंदा अवस्थित है, दुनिया को ज्ञान की रोशनी मिली थी। और यह भी एक संयोग है कि जब नालंदा विश्वविद्यालय ध्वस्त किया जा रहा था, उन्हीं दिनों यूरोप में विश्वविद्यालय उभर रहे थे। तो बिहार में ज्ञान का इतिहास कितना पुराना है, ये सबों को मालूम है।
और हमें इस बात की बेहद खुशी है कि फिर से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की दिशा में सार्थक पहल हुई। राज्य सरकार ने जहां विश्वविद्यालय को स्थापित करने के लिए जो जरूरी कार्रवाई है वह प्रारंभ कर दी है, वहीं केंद्र सरकार की तरफ से अनेक मुल्कों के साथ संपर्क साधा गया है जो नालंदा विश्वविद्यालय के निर्माण में अपना योगदान देने की इच्छा रखते हैं। जहां डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब को उस नए विश्वविद्यालय का विजिटर बनाया गया है, वहीं डॉक्टर अमर्त्य सेन की अध्यक्षता में एक मेंटर ग्रुप भी बना। अनेक देश के लोग इच्छुक हैं, सहयोग करेंगे और हम इसकी कल्पना कर सकते हैं कि निकट भविष्य में नालंदा विश्वविद्यालय एक नए रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होगा। जब हम लोगों की सरकार बनी तो हम लोगों ने कोशिश की है कि जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं वो ठीक ढंग से चले, उनको रिवाइव किया जाए, उनको मजबूत किया जाए और वहीं दूसरी तरफ नए इंस्टीट्यूशंस स्थापित किए जाए। और उसी कड़ी में चाणक्य विधि विश्वविद्यालय की स्थापना का निर्णय हुआ। 2 साल से पढ़ाई चल रही है, लेकिन शुरू से मेरी इच्छा थी कि जल्दी से जल्दी यह अपने कैंपस में आ जाए, क्योंकि अभी हम एन सिन्हा इंस्टीट्यूट के एक हिस्से में काम कर रहे हैं। बहुत अच्छे मौके पर आज शिलान्यास हो रहा। नए मुख्य न्यायाधीश महोदय ने 2 दिन पहले शपथ ग्रहण किया है और इससे बेहतर बिहार में और कोई दूसरा स्वागत नहीं हो सकता है कि आज आपके आए हुए 2 दिन नहीं हुआ है कि चाणक्य विधि विश्वविद्यालय का आज शिलान्यास हो। और यहाँ आने के बाद आपने अपने अनुभव के आधार पर कुछ बातों का जिक्र किया। हम लोगों की कोशिश है अनेक संस्थान आए, चाणक्य विधि विश्वविद्यालय की स्थापना हो गई है। उसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय ख्याति का इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट भी हम लोग स्थापित करना चाह रहे हैं। चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट उसमें भी नामांकन का काम, एडमिशन का काम इस तरह से शुरू हो रहा, उसे भी स्थापित करना है। उसके लिए भी हम लोगों ने धन का प्रबंध किया है। इसके अलावे आप सबको मालूम है आर्यभट्ट यहीं के थे। हम चाहते हैं कि उनके नाम पर यहाँ एक प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी भी आए, उसके लिए भी कानून के प्रारूप को तैयार करने की प्रक्रिया चल रही है। तो आर्यभट्ट विश्वविद्यालय भी यहाँ आएगा। ये सारे संस्थान हम चाहते हैं इसी इलाके में आए। आपने कहा कि पटना में शायद मुंबई इतना जगह की किल्लत नहीं है। ठीक है, मुंबई एक आइलैंड है, लेकिन अब वो आइलैंड बचा नहीं है। सब तरफ से उसका संपर्क मेन लाइन से हो चुका है, लेकिन मुंबई से तो हम अपनी तुलना कर नहीं सकते हैं। लेकिन बिहार में भी जमीन कम है, आबादी ज्यादा है। आबादी का घनत्व बहुत ज्यादा है, जो डेमोग्राफिक प्रेशर है वो बहुत ज्यादा है। 2001 की जनगणना के हिसाब से तो 8.2 करोड़ के करीब, 8.3 करोड़ के करीब आबादी है, लेकिन मैं समझता हूं कि 9 करोड़ से पार कर चुका है अस्पताल और जमीन तो सीमित है। इस नाते जब कहीं भी हम जमीन लेना चाहते हैं किसी बड़े काम के लिए, तो कहीं ना कहीं थोड़ी हिचक होती है, लोगों को भी तकलीफ होती है। तो इसको देखते हुए हमने सोचा कि कुछ इंस्टीट्यूशन तो आने ही चाहिए, और उस सिलसिले में हम लोगों ने ये इलाका था, ये मीठापुर फार्म है, कृषि से संबंधित कुछ गतिविधियां राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय की रही हैं, लेकिन बहुत समय तक ये पानी में डूबा रहता था, वाटर लॉक एरिया रहा है। हमने ये निर्णय लिया कि इसी स्थान पर सारे इंस्टीट्यूशन आएंगे, इनको भरा जाएगा, और बाकी जो अगल बगल के इलाकों के लिए ड्रेनेज का प्रबंध है उसका भी इंतजाम अलग से हम लोग कर देंगे। लेकिन हमारे आने के पहले ही यहाँ पर एक बस स्टैंड के बारे में फैसला हो गया था,
और वो वीर कुंवर सिंह पार्क के इलाके में है, वहां से उठकर निजी बस अड्डा यहाँ आ गया था। हम लोग सोच रहे हैं कि इसको और बेहतर जगह पर स्थानांतरित कर दें और ये पूरा का पूरा कैंपस हमें संस्थानों के लिए उपलब्ध हो जाए। लेकिन उसके अभी तक जो जमीन का हिस्सा इस्तेमाल किया गया था बस अड्डे के लिए, उसको सीमित कर दिया गया और बाकी जगहों का इस्तेमाल हम संस्थाओं के सृजन के लिए करें। यही चूंकि कई संस्थाओं को आना है और कुछ संभावित हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, इसके लिए भी 2 साल से बातचीत चल रही है। अभी हाल में टेक्सटाइल मंत्री जी का फोन आया, अब वो सहमत है पटना के लिए। हम उसके लिए धन और जमीन दोनों देने को तत्पर थे, तो उनके लिए भी यही जमीन देने का निर्णय था। तो इस प्रकार से कई संस्थान हैं। इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी से संबंधित यहाँ पर कुछ गतिविधियाँ भी होंगी, तो उसको ध्यान में रखते हुए चूंकि एक बार ये बात आई तो चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी के लिए हमारे अधिकारियों ने 18 एकड़ जमीन निर्धारित किया। लेकिन आप यहाँ पर आए हैं और आपने पहली बार मुंह खोल दिया है, तो आप उसको मना करना मेरे लिए संभव नहीं है। इसलिए चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के लिए 25 एकड़ जमीन दी जाएगी और फिर अगर उसके चलते कोई और संस्थान के लिए अन्यत्र जगह की तलाश करनी होगी तो हम लोग कर लेंगे। लेकिन अब मुझे पूरा विश्वास है कि इस विश्वविद्यालय के भवन निर्माण का काम इतनी तेजी से होगा, और जैसा मुझको एडवोकेट जनरल बता रहे थे और यहाँ के वाइस चांसलर डॉक्टर लक्ष्मीनाथ जी भी बता रहे थे कि अगले साल से यहाँ से यूनिवर्सिटी काम कर रहे हैं। क्या वाइस चांसलर साहब बताइए, सही है? अगले सेशन से यहाँ से काम करेगा 2009 जनवरी, और 18 महीने में पूरा बनकर तैयार हो जाएगा। इससे ज्यादा प्रसन्नता की और कोई बात नहीं होगी। और अगला सत्र इस बार जो तीसरे 3rd ईयर का होगा वो तो एन सिन्हा इंस्टीट्यूट से ही होगा, लेकिन इसके अगला सत्र यानी 2009 का सत्र इस कैंपस से होगा। और कैंपस इस लायक होगा कि जो भी स्टूडेंट वो भी यही रहेंगे, जो फैकल्टी मेंबर्स हैं और दूसरे स्टाफ मेंबर्स हैं वो भी सब यही रह पाए। तो इसके लिए जो भी पैसे की जरूरत पड़ेगी सरकार ने उसका प्रबंध कर लिया है, इसकी चिंता मत कीजिए। आज विधि वेत्ताओं की जरूरत है, ठीक का माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय ने और अन्य वक्ताओं ने भी कहा कि अब सिर्फ लॉयर्स इसलिए नहीं चाहिए कि वो कोर्ट में आर्गुमेंट करें, अब तो अनेक काम है। अब हर कदम पर विधि वेत्ता की जरूरत, और धीरे धीरे नियम कानून इतने बनते जा रहे हैं और जो नियम है सबको पालन करना है, उन कानूनों पर अमल करना है। तो जीवन के हर क्षेत्र में और हर एक प्रकार की संस्थाओं और संस्थानों को विधि वेत्ताओं की आवश्यकता हो। वैसी स्थिति में और जो अब दुनिया भर में जो ये ग्लोबलाइजेशन का दौर है उसमें और ज्यादा उनकी जरूरत है। जब हमारे पास विधि वेत्ता होंगे तो दुनिया भर में जो भी एग्रीमेंट्स होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय एग्रीमेंट्स होते हैं, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी होगा। अब बिहार में मेधा की कोई कमी नहीं हुआ है, पढ़ने वाले बिहार और देश भर के लोग, लेकिन बिहार में मेधा की कोई कमी नहीं। अगर अच्छे संस्थान मिले तो लोग उस मेधा के सहारे जीवन के हर क्षेत्र में प्रगति कर सकते हैं। इसलिए नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी उस दिशा में एक कड़ी है और चाणक्य के नाम पर स्थापित है। और मैं समझता हूं कि जब चाणक्य के नाम पर यह स्थापित है तो मेरी एक और इच्छा, बहुत सारे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पहले से है लेकिन हम किसी से कम नहीं रहेंगे। और जब इसकी स्थापना हो रही थी तो उसी समय हमने ये बात कही थी कि जल्दी से जल्दी 3 साल 4 साल के अंदर हम राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त करेंगे और इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त करेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये विधि विश्वविद्यालय बने और इसके लिए सरकार को सहयोग करती है, धन देती है, जो और सहायता अधिपति चांसलर। इसलिए आप और सोचिए इसका विस्तार, इसकी विशिष्टता, इसमें और कुछ खासियत हो। हम तो चाहेंगे कुछ ऐसी फैकल्टी हो यहाँ, कुछ ऐसा काम हो जो दूसरे
नेशनल लेवल के लॉ यूनिवर्सिटी में नहीं है तो और ज्यादा खुशी होगी। और इसके लिए कुछ तो मैं समझता हूँ इतने लोगों की शुभेच्छा जब है और इतने विद्वत जनों की शुभेच्छा है और नाम ही चाणक्य पर, उनके जैसा बहुत विद्वान कोई इतिहास में ढूंढे नहीं मिल सकता है, उनके नाम पर ये विश्वविद्यालय है। तो मैं समझता हूँ कि अन्य विश्वविद्यालयों से अलग और एक विशिष्ट और एक खास पहचान बनाएगा और न सिर्फ अपना नाम ऊंचा करेगा बल्कि जो गौरवशाली इतिहास है बिहार का उसको फिर से प्राप्त करने में अपनी एक अहम भूमिका यह विश्वविद्यालय निभाएगा। यही हमारी शुभकामना है और इसी के साथ आप इस अवसर पर अपनी समस्त शुभकामनाएं और अपना पूरा समर्थन व्यक्त करते हुए मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।